Thank you. To start the proceedings. A lot of recreation work is happening, and I believe that the younger generation, whoever is composing music now, they cannot make do without the inheritance of such legendary music which has happened. This day, I'm proud to bring this song, Tum Pukar Lo, because if you listen to this song, the older version, it is so beautifully and simply written that the lyrics are not trying to prove a point, and they're just exposing some emotions, expressing some emotions. And the shairi is limited to the feelings of the character. After 48 years also, I feel there is grand relevance of this song to the younger generation, and they're going to love it. What I've tried to do is not mess with the original track. I've kept it as pure as possible. I've kept it as innocent as possible, so that the younger generation loves the song, understands the song, and also feels the melody that was created so many years back. I think I can hear some buzz happening. I want to be thankful to Inder Kumar ji, who's here. A big hand for Inder Kumar ji, one of the legendary directors who has done such stupendous work in music with films like Beta and Dil. My brother Abu Malik is here. A big hand for him. And of course, my sons Amal and Arman, who are here to support me. And that's a big thing, because it's the first time a father is being launched by his younger sons. Thank you, Amal. Thank you, Arman. A big round of applause for Mika Paji is here. Thank you, Mika ji. One second. Mic check, mic check. I already had, but we're going to talk about him due course of time. India is brimming with musical talent, and just to find this new talent, be it newcomers, budding artists, or music directors, a company called MS Music has been founded. Being such a young company, it is already creating waves in Indian music scene.
Mr. Mika Singh, the founder of the company, has very aptly named his company MS Music, which is also an abbreviation of Mika Singh. It is providing a platform to many budding talents and through them bringing India a very famous melody back in trend. Now let me reintroduce to you the founder of the company, the voice behind the chart toppers like Mauja Hi Mauja, Ibn Battuta, 440 Volt. Let me introduce to you and call upon stage India's shining star, India's rock star, the man with the golden voice, and the man who can actually shake up the entire nation with his performances. Please welcome on stage Mr. Mika Singh. Can we have the bouquet of flowers presented to Mr. Mika Singh and Mr. Dabu Malik? May we also have on stage Roshan Gary, the director of the music video, and also on stage Amal Malik and Arman Malik. Kindly take your seats. Legendary music alive. He has composed songs for over 50 films and worked with all the stars including Salman Khan, Shah Rukh Khan and many more. He has acted in films like Bazigar and Tiranga and eventually became a music director. Today he has made a comeback after almost a decade. We'd like Mr. Mika Singh to say something about him, please. Well, मैं क्या बोलूँ? डब्बू जी का मैं बचपन से फैन हूँ. जब ये भी छोटे थे, मैं भी छोटा था. इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बचपन का मतलब मैं बच्चा था और आप बड़े थे, आप भी उतने ही थे. लेकिन डब्बू जी ने आई गेस कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी होगी जो इन्होंने ना की हो. एक्टिंग, सिंगिंग, होस्टिंग. तभी शायद आपको पता नहीं होगा, एक रियलिटी शो आता था जिसपे अंताक्षरी चलती थी. मैं 93 की बात कर रहा हूँ. फिर 95 में मैंने देखा है, पता नहीं ये कैदी बन गए किसी सीरियल में आ गए. फिर 98 में मैंने इनको देखा बाजीगर में हीरो आ गए. तो बहुत सारे इन्होंने काम करे. फिर 93 में मेरा गाना आया था समथिंग समथिंग, जिनका म्यूज़िक सर ने करा था और बड़ा सपोर्ट करा था. तो आज टाइम मिला कि हमें वापस इनको रीलॉन्च करना है, जो कि ऑलरेडी 2 बड़े स्टार तो हमारे साथ हैं, अरमान एंड अमल. अमाल, सही नाम बोलो मैंने? और अच्छी बात है कि आज इनका पापा, माय बेस्ट फ्रेंड डब्बू जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा गाना गाया. इनफैक्ट मैंने इनको सामने से बोला कि यार ये गाना मुझे दे दो, मैं प्रमोट करता हूँ. तो थैंक्स टू डब्बू जी कि इन्होंने गा के गाना पूरा वीडियो बना के हमें ये गाना दिया. थैंक यू सो मच. Before I hand the mic to you, Dabu ji, I want your sons to say something. It's really beautiful to see Dad release a song of his. We all have been waiting for this for a very long time because Dad का एक dream था कि मुझे always एक गाना गाना है, you know, and he's always wanted to sing songs. And finally it's happened that Tum Pukar Lo is being launched right here. Mika Paji is with MS Music and Sound is releasing this song, and the video is really, really something that I love. It's very close to what Dad loves doing. I think it's very close to his personality. And when I heard Tum Pukar Lo for the very first time, मैंने गाना सुना नहीं था पहले कभी. And for me, I think it's a very beautiful song, and I feel like people my age will really relate to this song. So best of luck, Dad, for this single, and hope you all shower all your love and support to the single to Dad, and we're gonna rock it. Lots of love. Okay, Amal. नंबर 1 म्यूज़िक डायरेक्टर आज की डेट में हमारे अमाल साहब हैं. और मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत इन दोनों भाइयों की मेरे से हुई है. लेकिन अभी मैं इनको बोल रहा हूँ यार मेरे से तो गाना गवा लो, मेरे से नहीं गाना गवा रहे यार. कमाल की बात देखो, मैंने इनको बोला कि ऐसे करो, पूरा रास्ता मैंने दिखा दिया.
अब ये मैं इनको ढूंढ रहा हूँ रास्ते में, कहाँ गए ये दोनों लोग? तो अमाल, जैसे मिका सर ने बोला कि डैड ने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें की है, एक्टिंग की है, सिंगिंग की है, सब कुछ किया है, बट एक मोटिव से कि अरमान और मैं अपनी एजुकेशन पूरी करें, फैमिली कंप्लीट रहे, उन्होंने कभी ही नेवर थॉट अबाउट हिमसेल्फ, एंड इट्स वेरी टफ टू बी लाइक हिम, एंड कि कभी भी एक ही एम था कि आई हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल एंड प्रोवाइड फॉर दिस चिल्ड्रन, विच आई ऑलवेज सॉ एज एन एल्डर सन। मुझे लगता था कि मैं कुछ तो करूँ फॉर दिस मैन, एंड वो मैं 16 साल की उम्र में मैंने शुरू किया टू असिस्ट हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम। जितना म्यूजिक मैंने सीखा है फ्रॉम हिम, फ्रॉम माई दादाजी, फ्रॉम माई अंकल, एवरीवन, आई थिंक माई डैड हैज़ अ प्योर सोल, एंड वो कहीं ना कहीं मेरी कॉम्पोजिशंस में दिखता है। सो आई थिंक वॉट एवर honest music that comes from me comes from him. So I want everyone to support this single that he has done, and at such a point in life where we are making waves with our music and singing, it feels good ki aaj dad is now stepping in to give us competition, so it's fun. बेसिकली इस गाने को करने की मेरी जो चाह है, द रीज़न फॉर इट इज़ माई सन आयमन. When I was listening to these old songs of 60s and 70s, and he used to say, Mama, no, he's just 13, and he used to not like these songs. And I was like, he should like it. He should know these songs because there's so much purity in the songs. There's so much truth. Lyrics इतने खूबसूरत होते हैं. And one day I heard Dabu singing. और इतनी ईमानदारी से, इतनी ऑनेस्टी से गा रहे थे वो. उनकी आवाज़ में इतनी डब्बू एज अ पर्सन इज़ अ चाइल्ड. डब्बू में बहुत बच्चा रहता है. एंड इफ ही कुड डू दिस सॉन्ग सो ब्यूटिफुली, आई टोल्ड डब्बू, लेट्स डू दिस सॉन्ग, लेट्स मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एंड लेट्स डू इट. थोड़ा मुश्किल था वीडियो, क्योंकि जैसे मैंने कहा, डब्बू में एक बच्चा रहता है, एक सांता क्लॉस रहता है जो हर वक्त उछलता कूदता रहता है, जिसको आप बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते हो किसी भी मूवमेंट के लिए. एंड इफ यू सी द सॉन्ग, देयर आर सो मेनी इंटेंस मूवमेंट्स इन इट, बट समहाउ ही डिड इट. He did it beautifully, and I hope you all like the song. And now, of course, जब ये वीडियो बन रहा था और सबसे पहले रोशन जी को मैं मिला, डब्बू जी ने मुझे मिलाया, और फिर मैं इनके पीछे पड़ गया कि यार मुझे वीडियो चाहिए, गाना चाहिए. और उससे पहले एक और गाना डब्बू जी ने बहुत अच्छा कंपोज करा, वो पता नहीं कहाँ इन्होंने है ना, मुझे मिलेगा सर? क्या आप अपने बच्चों को दे दोगे? मैं भी आपका बच्चा हूँ. सो ही इज़ ए वेरी टैलेंटेड गाय एंड वी ऑल नो अबाउट हिम. एंड देन अबू जी बैठे हैं. अबू जी के साथ मैंने बड़े शो करे. अबू जी को हमेशा मैं अन्नू जी समझता रहा, ये सोच के सारी उम्र मैं रिस्पेक्ट करता रहा, पाँव छूता रहा. फिर बहुत टाइम बाद दिलीप भाई ने बोला ये अनु जी के बड़े भाई हैं, छोटे भाई सॉरी. और जब अनु जी सामने आए तो मैंने उनके पाँव छुए, मुझे लगा शायद ये अबू जी होंगे. बट अबू जी, वी लव यू. अबू जी के साथ मैंने बहुत शोज करे हैं. इनफैक्ट पूरी फैमिली बहुत टैलेंटेड है, सरदार मलिक से लेके अनु सर से लेके डब्बू जी से लेके अब इनके दोनों बच्चे धूम मचा रहे हैं. सो आई एम श्योर कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, पूरा मलिक राज हो जाएगा हमारी इंडस्ट्री में. तो मलिक जी, आप हमें मत भूल जाना. सो हम एक बार वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? आपने किस सॉरी. एंड वेलकम इंदू जी, थैंक यू सर. आप हमारा ध्यान रखना, मेरा और डब्बू जी का. एज हो रही है हमारी, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं. I really thank Bikaji with all heart. I'm really thankful, and being such a huge success himself, he has come out and supported me with this song and inspired me to do it. So thank you, Bikaji, and thank you very much to him. My team, Neil and Ali, who have programmed the song, please stand up. You can come here, please. You can come.
Rahul Sharma, who has mixed and mastered the song. They are the real heroes of the song, which have done and recorded. Come. Stay in the front. Ali, Neil, come in the front. And Bhavesh Raval, who has done the cinematography. Thank you very much. A big hand for him. And we're going to see the video soon. I'm very, very thankful to director Roshan Gary Binder. And I think that's the screen. Yeah. Okay, let's see the video now. Let's see. Let me put on. So Dabuji has been a great fan of the music of the legends, and today he brings his tribute to Hemant Kumarji, Gulzar Sahab, and Kaifi Azmi ji. This video is created and directed, as he said, by Roshan Gary, who along with her husband Gary Binder ruled the entertainment industry for so long. Ladies and gentlemen, presenting to you Tum Pukar Lo by Dabu Malik. चुन रही है रात बेकरार है तुम्हारा इंतजार है दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से रात ये करार की बेकरार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो भरे भरे जरा पीने दो कल की किसको खबर इकरार होके निडर मुझे जीने रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिल पर रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिल पर और तुझसे हंसी
और तुझसे हंसी तेरा प्यार तू जाने ना ये नयन डरे डरे पुकार लो तुम्हारा The man of the moment, Mr. Dabu Malik. I think another big round of applause for him. I'd also like Mrs. Malik to say something actually at this moment. No, please, please, please. You have to share what's going on in your head, your mind, right here. Okay. First, thanks to every one of y'all who have come here and supported Dabu, it was his ambition to come out with a single, and I'm really, really happy and thankful to Mika Paji for making this day happen for him. No, but you are the person who's pushed him into doing it. So thank you for this day. Thank you. Such a beautiful song. I'm such a lover of old renditions, and what a voice you have. You know, wish we had you for longer, but now I think the journey started again. I feel we're supposed to listen to you for another 2 decades, and here his son would like to say something. I think we should hear it live from the man himself. What do you say? Yeah. अच्छा हुआ आप देर से आए वरना हमारा पत्ता साफ हो जाता। रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिल पर रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिल पर और तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार तू जाने ना ये नयन डरे डरे. Thank you. Okay, Mr. Perfectionist is here. तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो. I love my dad. This is for him. Thank you. एक्चुअली ये गाना इज एच्ड इन माई मेमोरी. मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ये लेजेंड्स का म्यूज़िक कभी भूल नहीं पाया हूँ. मुझे लगता है टाइम एंड स्पेस के अंदर मैं वहीं हूँ, उनके संगीत में ही हूँ, और उन लोगों का जो संगीत है और उनके जो गाने हैं वो मैं कभी भूल नहीं पाया. और मुझे ये मौका मिला था कि मैं पहली बार एक अपने सिंगल को लॉन्च करूँ, तो मैंने इस गाने को चूज़ किया है बिकॉज इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं. और हेमंता की आवाज़ जो है मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. गुलजार साहब की राइटिंग में इतना दर्द है विच आई एम अ ग्रेट फ़ैन ऑफ. और कैफ़ी साहब जो ये नयन नयन जिनका गाना है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि इतने बड़े दिग्गज लोगों को एक साथ में एक 5 मिनट में सिमट कर लेके आ जाऊँ. तो आज का दौर ऐसा है कि आप ये कर सकते हैं. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मिका पाजी बिकॉज ही इज़ बीन वेरी स्वीट टू मी. एंड
that he said कि you have to do it, and he forced me to do it, and I'm thankful he's here to support me. And his company MS Sound, which is becoming bigger and bigger, is a great feeling for me, and I'm very, very happy. Thank you so much. मैं डब्बू जी का फ़ैन भी हूँ, दोस्त भी हूँ, भाई भी हूँ छोटा इंसान, और काफ़ी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और जब भी मिलते हैं तो डिस्कशन करते हैं क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और 93 में मेरा सॉन्ग आया था समथिंग समथिंग, जो कि फ़िल्म बड़ी सीक्रेट थी, लेकिन रिलीज़ बहुत देर बाद हुई, गाना चल गया हमारा। उसका म्यूज़िक भी सर ने किया था। देन 2007 में मिले, फिर 10 में मिले, करते करते करते, और मैं जब से जानता हूँ ही इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, बहुत अच्छे सिंगर हैं, एक्टर आपको पता ही है, बाजीगर आपने देखी है। तो फिलहाल उन्होंने मेरे लिए गाना कंपोज किया था, तो जब ये गा के बता रहे थे तो मैंने बोला कि आप मेरे से बेटर गा रहे हो, तो ये गाना मैं नहीं गा पाऊँगा। बहुत अच्छा मेलोडी सॉन्ग इन्होंने बनाया था, फिर ये गाना इन्होंने सुनाया, तो हमने ऑलरेडी मोर देन 200 वीडियोज़ बनाए हैं ओल्ड इज़ गोल्ड के, जिसमें हमने पुराने गाने लॉन्च करें। तो आई थिंक अब तक का बेस्ट गाना यही हमें मिला जो डब्बू सर ने गाया। बहुत खुश हूँ एक्चुअली। डैड हमेशा से उनकी एक वॉइस बहुत यूनिक रह चुकी है। मैं जितने भी उनके गाने उनकी आवाज़ में सुने हैं, पुराने गाने भी मैंने उनको गाते हुए सुना और फिर उन्हें वापस जाके सुना है, उनकी वॉइस बड़ी अलग सी, बड़ी पेक्यूलर है। और जैसे इन्होंने इधर गाया, अभी मुझे भी लग रहा है कि मुझे उन्हें गवाना पड़ेगा मेरे कोई गाने में, बट मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पहला गाना मिका जी का है। रिलीज इधर ही होगा, बट बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं एक्चुअली बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ कि ये गाना कब आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली 2016 में डैड ने रिकॉर्ड किया था, और हम लोग फिर वर्ल्ड टूर पे चले गए थे, एंड डैड मुझे बजा रहे थे मतलब फ़ोन पे, एंड मैं कह रहा था रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे हो आप। एंड मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, जब वो होना होता है तब वो होता है, एंड इस तरीके से होना था। मीका सर ने रिलीज़ किया ऑन MS, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई डैड कि आज उनका एक गाना आया है एंड हम इसे प्रमोट कर सके, हमें वो मौका मिला है to promote a song of my dad. But मैं बहुत खुश हूँ, एंड मेरे लिए और मतलब गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती, that just to present डब्बू मलिक presenting तुम पुकार लो, I think that's the biggest thing, and हम लोग सब एकजुट हुए हैं आज for this special man, क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी मतलब म्यूज़िक करने की, गाने की, लेकिन वो एक सही मौका, सही टाइमिंग नहीं मिला। मुझे लगता है कि आज एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें फिल्म्स की ज़रूरत नहीं है हमें। आई थिंक वी कैन डू नॉन फिल्म म्यूज़िक, डू इट ऑन आवर ओन यूट्यूब चैनल, एंड पूरी दुनिया सुन सकती है हमें कोई भी कोने में, एंड आई फील नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम, एंड कूडोज टू MS म्यूज़िक जो आज प्रमोट कर रहा है यंग टैलेंट को, यंग लोगों को, ओल्ड गानों को रिवाइव कर रहा है। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग, एंड तुम पुकार लो विल डेफिनेटली बी अ ह्यूज सक्सेस। नहीं, एक्चुअली इन्होंने पूरा रिकॉर्ड करके हमारे पास लेके आए थे, तो हम बोल रहे थे कि कब रिलीज़ कर रहे हो आप, हमें कोई मतलब हम इस गाने में तो सजेशन नहीं दे पाए लेकिन डैड हमारे रिकॉर्डिंग्स में बैठते डेफिनेटली, एंड अमल के रिकॉर्डिंग में कभी परकशन का काम हो या मेलोडिक स्ट्रिंग्स हो, सब में मैंने जितनी भी ट्रेनिंग ली है सब इनसे सीखी, सब कुछ। सीरीज ऑफ सिंगल्स करना चाहिए। हाँ, सिंगल्स ही आई थिंक सिंगल्स ही करना चाहते हैं वी आर टॉकिंग फॉर डैड, बट करेंगे बहुत। बट एक गाना है जो मैंने और डैड ने एक साथ आई थिंक वी आर प्लानिंग टू डू, जो उन्होंने कंपोज किया है और मैं गाने वाला हूँ, तो होपफुली वो मैं अरेंज कर दूँ, वो जल्द रिलीज होगा, मैं प्रमोट कर दूँ डेफिनेटली। अच्छा, आज हम लोग ये मौका लेना चाहते हैं कि मैं भी एक लव सॉन्ग मिका जी के साथ प्लान कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लव सॉन्ग, और it will be अरमान छीन ना ले मेरे से and it will be something which will be unique. So it is like brothers, all of us, we are working, and wish us luck so that we can take the legacy of music ahead. Thank you so much. Thank you. खींच तो भाई
सारे वीडियो बना रहे हैं हाँ सर फोटो ले लो भाई फोटो वीडियो वो आ गया फोटो Yes, please.